This lecture is related to the concept of separation of power, which is an important part of USA Constitution. Basically, when we talk about the concept of separation of power, it has unique and important worth in USA Constitution, along with the idea of check and balances. Basically, Constitution of America clearly shows that all legislative powers vested in Congress, while executive powers under the control of President and judicial powers in the hands of Supreme Court. As all of us knows that there is no other constitution in which demarcation of the three wings of government is so clear. Here I give you the example of Pakistan. Like all the legislative powers is vested in the parliament, but parliament consists of president and two other houses, Senate and National Assembly. While in USA, each of three wings is separate and independent without the dependent upon other departments like executive dependent on legislative or judiciary dependent on other two. Like all the three departments are independent एंड विदाउट एनी इंटरफेरेंस अपना तमाम जो भी उनको वर्क कह लें लॉट किया जाता है दिया जाता है जो भी उनके टास्क हैं उनको परफॉर्म करते हैं और कोई भी एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता. Basically, this theory is adopted or presented by Montesquieu. According to this theory of separation of power, all branches kept other branches away from the unlawful uses of his powers. Means कोई भी जो एक डिपार्टमेंट है या एक ब्रांच है उसका इन्फ्लुएंस या उसका जो है उसके इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं कर दिए जाते कि वो बाकी जो अदर दो ब्रांचेस हैं लाइक लेजिस्लेटिव को अगर ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं तो वो एक्सेक्टिव और जुडिशियल को इन्फ्लुएंस करे या उनकी वर्किंग में इंटरफेयर करे. सेम लाइक अगर ये ना जुडिशरी को ज़्यादा दे दी गए मीन्स तीनों को सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली जो उनकी लिमिटेशंस में जो उनके इख्तियारात हैं लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग executive enforcement and judicial reforms, judicial working, all the related to the justice. उस सब तमाम की तमाम टास्क जुडिशरी के पास हो गए. Basically, the framers of the USA Constitution are so impressed of this theory. That's why they this famous theory of Montesquieu and included in the USA Constitution. Basically, this theory is the division of responsibilities of the government departments so that all departments can independently work without any influence. Each and every department will use his powers by its own. Basically, separation of power have been made only for the safety of liberty of individual. It means कि तमाम के तमाम जो भी ये कॉन्सेप्ट्स लिए गए जो मोंटेस्क्यू के और चेक एंड बैलेंसेस का जो बाद में ऐड किया गया उसका एक और पॉइंट उसका मकसद क्या था कि इंडिविजुअलिटी ऑफ स्टेट के इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी अदारों की और इंडिविजुअल्स की उसको बरकरार रखना. यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो मोंटेस्क्यू की थीरी है उसको थोड़ा सी उसके एक्सपोजिशन के बारे में मतलब उसके बारे में बात करती हूँ. Basically, Montesquieu explained in his theory there are three different kinds of powers in government, which are executive, legislative, and judicial. The basic concept of all these institutions or organs of the government to maintain liberty of individual, and it requires that all three organs should be not given to a single person or a single department so that the rights of individual could not be violated. It means कि तमाम के तमाम जो भी उसके कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इख्तियारात हैं किसी भी एक स्पेसिफिक अदारा है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को नहीं देना कि जिससे क्या है उसके इंडिविजुअल एक अदारे की एक जो ऑर्गन है जैसे लेजिस्लेटिव है एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है किसी भी एक ऑर्गन की ऑफ द गवर्नमेंट क्या है उसकी वायलेशन हो उसकी वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए या वो अपनी वर्किंग अच्छे से परफॉर्म ना कर सके. Because if all the powers delegated to only one department or any other single individual, then it not good for other two departments because of the influence of that specific institution. तो वो अदारा बाकी दो अदारों को दो एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव को ज़्यादा इख्तियार दे दिए तो वो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करेगा उसको उनको जो भी वो डिसीजंस लेंगे वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे फ्रॉम द साइड ऑफ लेजिस्लेटिव. इसलिए उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि वो किसी एक को दे दीजिए तीनों को
इंडिपेंडेंटली तमाम के तमाम जो इख्तियार हैं उन फील्ड से रेलिवेंट वो दे दिए जाएं। ये एक ट्रायंगुलर की फॉर्म में है, जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, तीनों अपनी अपनी फील्ड में सेपरेट है। ये बेसिकली इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कह लें, जो इसका कोर पॉइंट था। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल अगर ऐड कर दूं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, हैज अ फिक्स्ड टेन्योर एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। इट मींस उसका टेन्योर 4 इयर्स का होता है, और वो क्या है, कांग्रेस को ना वो ना उसकी कैबिनेट कांग्रेस को आंसरेबल नहीं होती है, अकाउंटेबल नहीं होती है। इट मींस उसकी जो कैबिनेट होगी वो किसको आंसरेबल होगी, प्रेसिडेंट को, नॉट कांग्रेस को। और जो कांग्रेस जो उसका प्रेसिडेंट हो गया एग्जीक्यूटिव बता रहा, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन, और जो कांग्रेस है वो क्या हो गया इसकी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। द कांग्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सिंस इट कैन नॉट बी originated और dissolved by him। ना ही वो इसके थ्रू उसने इनिशिएट करेगा, ना मतलब उसको उसकी सेटलमेंट की तरफ या उसकी इनैगुरेशन की तरफ, इन अ सेंस ऑफ इनैगुरेशन, और ना ही उसको डिसॉल्व करने का इख्तियार क्या है। उसने कहा कि सिंगल किसके पास, प्रेसिडेंट के पास है। सेम लाइक उसने कहा कि ना ही जो जुडिशरी है, फेडरल जुडिशरी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। दोनों अदारों से क्या है, ये इन्फ्लुएंस से आज़ाद है, क्योंकि किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कोई भी जो दायरा है वो रिमूव नहीं कर सकता। बहुत रेयर केसेस और कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिसपे लाजमी हो गया उसको बताना, तो उसका एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। उसके तहत उसको क्या है, जज को क्या है, रिमूव किया जा सकता है। ये तो था कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही एक और इस थ्योरी को ऐड करते हुए एक न्यू चीज को, जो कि ओरिजिनली या इनिशियली यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, तो कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, उसको जो बाद में अमेंडमेंट्स के तहत इसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसका रीजन क्या था कि कोई भी एक अदारा वो क्या है, अगर सबको इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करने के लिए अपने अपने सर्कल में इंडिपेंडेंट और सेपरेट अदारा बना दिया गया है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है वो दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे या कॉपरेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए द कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस जो है, जो यूनिकली क्या है, इज अ पार्ट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ऐड किया गया है। तो वो अब हम वो डिस्कस इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे।